को पढ़ो, कोई बात नहीं, ये भागेगा, ये तुमसे कहेगा क्या बेवकूफी जैसी बातें कर लो, कर कभी कभी बेवकूफी भी कर लो यार जिंदगी में। सिगरेट अगर पीना समझदारी है तो ध्यान करना बेवकूफी कैसे हो सकता है? तो 1 घंटा मंदिर में बैठ जाओ और कम से कम 1 घंटा जिम में बैठ जाओ। जिम जरूर जाया करो, नहीं तो तुम्हारे शरीर में 3 चीजें इकट्ठा होने लगेंगी, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और शुगर। दे कम आउट ओनली थ्रू योर स्वेट। Whatever you eat, 70% comes out from your excreta. Only 70. 30% is left in your body. इसलिए सारे धर्म कहते हैं कि पसीने की रोटी खानी चाहिए। तो पसीने की रोटी का मतलब ही ये है कि when you sweat, तो these 3 things come out: uric acid, cholesterol and sugar. And these 3 things are the base for all the big diseases. अब तुम सोचो कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गई, तो ये जहर ही तो है। तो जो जहर वाले सेल्स बढ़ने लगेंगे ये उनको प्रमोट करेंगे, जहर को जहर देने लगेगा, कैंसर हो जाएगा। जहर जो है वो जहर को जहर देने लगेगा, वो कैंसर में टर्न हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी ये तीनों चीजें निकल रही हैं और पावरफुल सेल्स स्ट्रांग है, पावरफुल फ्लूइड स्ट्रांग है, तो वो कमजोर सेल्स को खा जाएंगे, तुम स्वस्थ रहोगे। तो ये था मेरा पूरा मोटिव। अब एक, हाँ, तो मैंने तुमसे ये कहा, द क्वेश्चन विच आई आस्क्ड यू कि द ड्रॉबैक्स ऑफ 4 मुगल रूलर्स, लेटर मुगल्स। अब दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2nd पेज ऑफ एनसीईआरटी। पहला रूलर, हु इज द फर्स्ट रूलर? बहादुर शाह वानी। हु इज द सेकंड रूलर? जहांगीर शाह। हु इज द थर्ड रूलर? फर्रुखसियार। Who is the 4th ruler? मोहम्मद शाह रंगीला। They are the 4 rulers. ठीक? एनसीईआरटी पढ़ी विपिन चंद्रा की? किसने पढ़ी? What amount was left in a treasury when Aurangzeb died in 1707? ये 2nd पेज का क्वेश्चन है। What amount was left in the treasury when Aurangzeb died in 1707? 13 करोड़। 13 करोड़ रुपए बचे थे when Aurangzeb died in 1707. But when Aurangzeb died, what was his background? Political and financial crisis. This was his background. Bahadur Shah Wali. Maratha revolt, Jat revolt, Sikh revolt, Satnami revolt, चारों तरफ revolt चल रहा था और financial crisis. अब क्या करना था इसको? He has to satisfy all the rebels. He started distributing money and land and jagirs, and he distributed to such a level that finally nothing was left in the treasury. So he is the man who created financial bankruptcy in Mughal Empire. This was his drawback. He is called as Shah Bekhabar. ये इसकी टाइटल थी, शाह बेखबर। He is called as Shah Bekhabar. This was the drawback of Bahadur Shah I, financial bankruptcy in Mughal Empire. Now state is bankrupt, so you cannot run it. So what was his background? Jahangir Shah, financial bankruptcy. Financial bankruptcy. अब आप राज्य तो चला नहीं सकते, पैसा है नहीं, so the person who will help you will dictate you. So his drawback was emergence of kingmakers. यहीं पे तुम्हें पहली बार किंग मेकर मिलेगा, जहांगीर शाह का किंग मेकर जुल्फिकार अली खान। लेकिन जब एक नोबल, अब मान लो there are 10 nobles in a court, out of 10 1 is dictating the king, 9 will be disappointed. So what is his background? Role of kingmakers, but other nobles are disappointed. They started conspiring. They started instigating the king. When they started instigating the king, he starts taking action against the kingmaker. Farrukhsiyar takes the action against Sayyid brothers. They killed Farrukhsiyar. So kingmakers became superpower. They are the superpower. Killing of the emperor. Now when kingmaker is a superpower, the other nobles are angry. वो तो बहुत गुस्से में है कि तुम हमारा सुन रहे हो। तो what is his drawback? Kingmakers are superpower. राजा तो कुछ है ही नहीं, kingmakers. This is his background. मोहम्मद शाह रंगीला। तो एक तो kingmakers are superpower, second he is not listening to anyone, मोहम्मद शाह रंगीला. So you will see physical breakup of Mughal Empire. The first one to move out was Nizamul Mulk 1784, the establishment of Hyderabad state. तो इसका ड्रॉबैक क्या है? फाइनेंशियल बैंकरप्सी। जहांगीर शाह, emergence of kingmakers. फर्रुखसियार, kingmakers are superpower. मोहम्मद शाह रंगीला, physical breakup of Mughal Empire. ऐसे पढ़ो ना यार।
तुम खुद सोच के देखो, सोच कर कि अगर तुम मारुति नहीं चला सकते 800 तो ट्रक कैसे चलाओगे यार? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि एनसीईआरटी पे कमांड डेवलप करो। सेकंड पेज का क्वेश्चन था ये, दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ द सेकंड पेज। और ये हो सिर्फ इसलिए रहा है क्योंकि तुम सब पे ध्यान दे रहे हो। तुम अगर 50% कंसंट्रेट हो जाओ, तुम्हारा परसेंटेज मुझसे हाई है, मैं मानता हूं, और तुम्हारी कंसंट्रेशन लेवल माइनस में है इन कंपैरिजन टू मी। बस इसीलिए तुम्हें 96% लाने के बाद भी मुझसे पढ़ना पड़ रहा है, बिकॉज योर कंसंट्रेशन लेवल इज इन माइनस। इसलिए मैंने तुमसे पिछले 12 क्लासों में कहा कि मेडिटेशन करो यार। ये बाहर जो चपरासी है, इसका दिमाग अगर खराब है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम राजा हो। अगर तुम ऐसे हो गए, ये कौन लोग हैं? ये चपरासी लोग थे। राजा इज अ मेंटालिटी, इट्स अ साइकोलॉजी। उसके पास पैसा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबर के पास नहीं है, काबुल की स्टोरी पढ़ो, उसकी जीवनी जरूर पढ़ना, तुझे बाबरी बायोग्राफी, उसकी ऑटोबायोग्राफी। सर आपको इतना मजा आएगा ना उस आदमी को पढ़कर। ही इज बेगिंग इन अफगानिस्तान, खाने के लिए भीख मांग रहा है वो कि खाना दे दो मुझे। बट ही सेज टू गियास बेग, ही वाज अ बुचर इन काबुल, कि अगर तुम मुझे खाना खिला दोगे तो एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। तो वो हंसने लगा कि खुद तो भीख मांग रहे हो, मुझे राजा बनाओगे? तो बुजुर्ग लोगों की एक्सपीरियंस हाई होती है। एंड वॉट एवर यू आर, दैट इज रिटन ऑन योर फेस। क्योंकि जो भी यहां चलता है वो यहां एक्सप्रेस होता है। इसलिए स्किन बड़ी फेयर हो, भले ही फेयर हो, लेकिन जेल में जो आदमी होगा उसकी एक्सप्रेशन अलग होगा। स्किन भले ही फेयर हो, पर हॉस्पिटल में जो आदमी होगा उसका एक्सप्रेशन अलग होगा। स्किन भले फेयर हो, बट बियर बार में जो आदमी होगा उसका एक्सप्रेशन अलग होगा। फेयरनेस इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ हैप्पीनेस। तो बहुत फेयर आदमी है, बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन है, गोरा है, लेकिन अगर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिटेड है लास्ट फेज कैंसर में, तो तुम उसे देखना नहीं चाहोगे। इसलिए जो एब्सेंट माइंड है ना उसको फेयर होना है, और जो एनलाइटेड माइंड है उसको ताकतवर होना है। क्योंकि ये जो चमक यहां पर है, दैट इज बिकॉज ऑफ पावर। यहां चमक नहीं है क्योंकि यहां पावर नहीं है। तो तुम्हें फिजिक्स पढ़ाई गई थी कि तुम्हें समझो पावर एनर्जी दोनों में डिफरेंस क्या है, और फोर्स, तीनों अलग अलग चीजें हैं, पावर, एनर्जी एंड फोर्स। पर अगर तुम वो समझ नहीं पाए, एनर्जी पैदा करो मेडिटेशन से। क्रिएट एनर्जी बाय मेडिटेशन। ये सारी फीलिंग तुम्हारे अंदर आती होंगी। सर आने तो कोई बात नहीं, तुम क्यों भाग रहे हो उनसे? ये वो चीजें हैं जो तुम्हें कमरे में बैठ के पढ़ने नहीं दे रही, बिकॉज यू आर यंग, यू आर हैविंग गुड फूड, और दिमाग तुम्हारा स्टेबल नहीं हो पा रहा है। और चूंकि ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, ये सबसे बड़ा रीजन है कि तुम्हें ये बात, तुमने ये एंगल सोचा ही नहीं कभी कि यार दिस कैन ऑल्सो बी अ रीजन। तो फिर तुम्हें लगा कि यार, तो एनर्जी क्रिएट करो मेडिटेशन से, फिर उसको पावर में कन्वर्ट करो। पावर में क्या कन्वर्ट होगी? एनर्जी। पावर में कन्वर्ट करो, देखो कितना फोर्स आ जाता है तुम्हारे अंदर। तुम जो भी बोलोगे लोग सुनेंगे। अब एक रिक्शा वाला क्या है, उसके पास एनर्जी नहीं है, तो अगर वो बोले ध्यान पे तो लोग बहुत पीटेंगे उसको, क्योंकि उसके वर्ड में एक डेड बॉडी, मान लो एक मेल डेड बॉडी है, उसका तुमने सीमेन निकाला और किसी वुमन के वूम में डाल दिया, बच्चा पैदा होगा? नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो व्हेन यू स्पीक विदाउट एनर्जी,